Hello and welcome everyone. I am CACS Riddhi Jain, and this particular class will deal with chapter number 3 of audit. Now, to whom this is relevant? Chapter number 3, the name is Risk Assessment and Internal Control of Audit. Now, this was earlier chapter number 4 for the old course people. Now, people who are attempting their May 24 examinations, please go through it. Now, the fact is, auditing is generally considered as a hard subject because बहुत सारे interrelations, interconnections बिठाने पड़ते हैं. I have tried my level best to make it very brief in order to make you understand, not only make you understand, but also make you learn out things. We'll see the chapter name. I'll also show you the study material of all the portions that I'll be covering. I'll try my level best to cover things in a very complex and elusive format so that you're able to revise it on timely basis and you get that grip and confidence in the subject. Now, coming on to the fact risk assessment and internal control. This is our chapter number 3, risk assessment and internal control. Now, what exactly is risk assessment and what exactly is internal control? First, what I'll deal with is internal control. So, once we start looking at what internal control is, so internal control, generally, everybody of you live in a home or a hostel. अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो वहाँ का एक पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल है. यू हैव अ टाइमिंग व्हेन यू हैव टू एंटर. देयर आर रूल्स रेगुलेशंस दैट एट दिस टाइम द लाइट शुड गो ऑफ. there's a rules regulation ki shoes bahar mein rakhne hain. So there are multiple rules and regulations. In your home also there is a regulation. In kitchen there are certain things kept. In your bedroom there are certain things kept, right? At the same time there is the regulation, how you speak, how you talk, how you eat, how you converse with people at the home. There are regulations, bahar jaoge to itne baje tak वापस आ जाना. What are those are internal controls. So as soon as you go for audit, ये सारे इंटरनल कंट्रोल आपको लगते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, बॉडी का जब हमारा इंटरनल कंट्रोल खराब हो जाता है तो व्हाट हैपेंस, जब हमारी बॉडी का इंटरनल कंट्रोल खराब हो जाता है तो वी गो टू अ डॉक्टर. ऑलवेज रिमेंबर दिस, whenever I'll talk of internal control, I'll call the doctor. So whenever I call the doctor for internal control, while defining internal control, I'll always call a doctor. Why do I need to call a doctor when I say internal control? In order to see how internal control is designed. D is your design in case of doctor. What is O? O is your operating effectiveness and efficiency. And what is C, madam? C is the continuity. So, what are the three things that we'll see? Designing, operating effectiveness, and its continuity. वो कितने अच्छे से चल रहा है. घर में जब एक बार लॉ रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं तो पहले उसकी डिजाइनिंग होती है, डे टू डे बेसिस में वो ऑपरेट होते हैं, उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस होती है, और बाद में क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इंटरनल कंट्रोल इज. नाउ इन ऑर्डर टू सी वेरी बुकिश लैंग्वेज ऑफ हाउ इंटरनल कंट्रोल इज डिफाइंड इज, इंटरनल कंट्रोल ऐसी डेफिनेशन है जो आपके दिमाग की बत्ती को जला देगा, राइट? सो व्हेन आई से दिस, आई मीन इज दिमाग की बत्ती जला दे. लाइट ही होती है ना जो डिम हो जाती है और ब्राइट हो जाती है. तो डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन. तो इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन. कौन करता है? मैनेजमेंट करता है. व्हाट डज मैनेजमेंट डू? इट डिजाइन्स द इंटरनल कंट्रोल, इम्प्लीमेंट्स द इंटरनल कंट्रोल, और उसके बाद उसको मेंटेन करता है. हम कैसा अश्योरेंस देते हैं? हम कौन है? वी आर द ऑडिटर्स. डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन. हु आर वी? Who designs it? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, या कोई पर्सनल उसको क्या करेगा? डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन करेगा. हम कौन है? ऑडिटर हैं. सो व्हाट विल वी डू? वील गिव रीजनेबल अश्योरेंस. हम कभी 100% कंप्लीट अश्योरेंस देते हैं क्या? नहीं देते हैं. एब्सोल्यूट अश्योरेंस देते हैं क्या? नहीं. व्हाट वी गिव इज रीजनेबल अश्योरेंस. एंड शुरू शुरू में यू क्लियर योर एग्जामिनेशन, यू बिकम एन ऑडिटर, एंड पहली बार आपको कोई इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल ऑडिटिंग मिलती है कहीं कि आप इंटरनल ऑडिटर बनते हो, तो वहां का इंटरनल कंट्रोल आपको चेक करना होता है. बिना इसे इंटरनल कंट्रोल चेक करना होता है. मान लो आपको ये काम ही नहीं मिला तो आपने क्या कर लिया? मुंह फुला लिया. नाउ व्हाट आई मीन एंड हाउ डू आई मेक यू लर्न इज जस्ट सी इट. अगर आप मुंह फुला लेते हो, नया नया काम मिल रहा है लेकिन आपको तो वो भी नहीं मिल रहा है,
तो आपने क्या किया, मुंह फुला लिया. दैट बेसिकली इज द पर्पस, क्योंकि आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है ना, इसलिए आपने मुंह फुला लिया. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज FOLA. कभी भी इंटरनल कंट्रोल मान लो बैंक में लगा है, बैंक का इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है. ये कैसे देखोगे आप, वहां पे बराबर से कैमरा चल रहे हैं कि नहीं, लॉकर्स में बाकायदा चाबियां वाबियां बराबर लगी रहती है कि नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है. देयर आर 2 people who sign in the register, then only you can check the register. अदरवाइज क्या होगा, कोई भी आएगा बैंक से कुछ भी सामान उठाकर ले जाएगा. So you have to safeguard your assets, and this asset is represented by A. A is what? Asset safeguard, safeguarding of assets. What is the first point here? Financial reporting की reliability. अगर financial reporting की reliability बहुत अच्छी है तो वो आपका एक पर्पस है. इसी रीजन से तो आपने इंटरनल कंट्रोल सेट करके रखा है. एक पर्टिकुलर बिजनेस में, बिजनेस ऑपरेशन में आपने इंटरनल कंट्रोल क्यों लगा के रखा है? FOLA के लिए, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी रिपोर्टिंग की क्या, रिलायबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी के लिए. सेकंड, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. मैंने क्या बोला था, डॉक्टर को बुलाओ, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखो, इफेक्टिवनेस देखो, और क्या देखो, कंटिन्यूड चल रहा है या नहीं. तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आप कहाँ देखोगे, उसका पर्पस है वो, इसका इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है वो. व्हाट इज एल, आपने लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई किए या नहीं. लॉ एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस इज योर L in FOLA. So I completed here and I sum up this particular page. Before I take up limitations of internal control, that internal control में आप डॉक्टर को बुलाओगे, दिमाग की बत्ती जल जाएगी. इट इज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन. कौन करता है? मैनेजमेंट करता है. हम कैसी अश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं. इस अश्योरेंस को देने के लिए एंटिटी का एक ऑब्जेक्टिव होता है. एंटिटी का ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है इस इंटरनल कंट्रोल को लगाने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए हमारे? रिलायबल होने चाहिए. सेकेंड, हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अच्छी होनी चाहिए. थर्ड, लॉ रूल्स रेगुलेशंस को आप कंप्लाई करो और ए से अपनी एसेट को सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करके रखो. लिमिटेशन क्या होती है इंटरनल कंट्रोल की? a lot of you people are in relationships. Now what is the limitation of your girlfriend or you being the boyfriend? What are the limitations? There is a barrier, there is a line that you do not want to cross. That is your limitation, right? In the similar fashion and manner, when I will tell you, internal control की भी अपनी एक limitation होती है. तुम्हारा खुद का एक internal control होता है ना. I would not overtake few steps or I'll not overlap these steps even if I'm in relationship. Now सबसे important चीज, गर्लफ्रेंड जल्दी से किस नहीं देती, right? She doesn't kisses you. That is what is the limitation of an internal control. What is limitation of internal control? So your limitation of internal control is auditor internal control को चुम्मा देगा. Now, मैम ये कैसी बातें कर रहे हो? In order to make you learn and understand things, there are short forms that we create. CHUMA. And what I said is internal control को. What I said here is auditor internal control को CHUMA देगा. So गर्लफ्रेंड इतनी आसानी से देती है क्या? नहीं देती है. क्यों? क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन है. नाउ व्हाट माइट गो रॉन्ग? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गड़बड़ हो जाएगी जिसके कारण वो नहीं देगी? फर्स्ट, सी collusion amongst people. Now what is collusion amongst people? तुम्हारे जो एम्प्लॉयज है उन्होंने साइड में एग्रीमेंट कर लिया, तेरे को बाहर ही बाहर हम सेल कर देंगे. तुम्हारी एक कोर पार्टी है, उसके साथ उन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया. व्हाट इज दैट? दैट इज collusion amongst people. अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाना किसी भी एंटिटी में. ये इंटरनल कंट्रोल को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, गर्त में लेके जा रहा है, डाउनग्रेड कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है. फर्स्ट इज व्हाट? collusion amongst people. सेकेंड इज व्हाट? ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. हम नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं ना, ह्यूमन इज व्हाट? मेड अप ऑफ फुल ऑफ एरर्स. ह्यूमन एरर इज अ वेरी कॉमन थिंग. तो ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब क्या है? आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाला, आपने कोई भी टाइप का एनालिसिस किया,
या आपने अंडरस्टैंड नहीं किया कोई पर्टिकुलर चीज को, और क्योंकि आप ह्यूमन हो तो आपसे क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा आपको। जब आप डिजाइन करते हो अपने कंट्रोल्स को तो वहां पे आपने कोई एरर कर दी है। तो ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, योर सी इज collision, लड़ाई झगड़ा, H is human judgment. What is U? Understanding nature of transaction, unusual nature of transaction. कैसा nature है transaction का? Unusual nature of transaction. What is unusual nature? जो day to day life में normally नहीं होता, कैसे transactions को बोलते हैं unusual nature of transactions? Related party transaction, बहुत लंबा लोन दे दिया आपने किसी को, योर चंदा कोचर्स केस, इंटरनल कंट्रोल की डिफिशियंसी थी वो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते थे उनके और उनके हस्बैंड के बीच में। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दैट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन? व्हाट इज दिस लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? व्हाट इज एम मैनेजमेंट का जजमेंट? एक बार किसका जजमेंट था? ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डीलिंग विथ हियर? That is human judgment, and this is management judgment. What is the next thing? Abuse of authority by control owners. जिसके पास सबसे ज्यादा पावर्स है वो अपने पावर्स को क्या कर रहा है? अब्यूज कर रहा है। If a girl is exactly ready to kiss you, she is actually abusing her own powers, abusing her own controls. वो अपने कंट्रोल से क्या कर रही है? छेड़छाड़ कर रही है। So that is abusing her own powers, right? So when abuse of authority by control owners. Next is internal control. तो जो आपका internal control है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट मतलब कितनी प्राइस आपको वहां पे लग रही है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को चुम्मा देगा। सी इज collusion with amongst the people. H is human judgment and decision making. U is your unusual nature of transaction. What kind of transactions? Related party transactions. M is your management judgment. A is your abuse of authority by the control owners. जिनके पास ज्यादा पावर है वो क्या कर रहे हैं? सब अब्यूज कर रहे हैं, लड़की खुद गलत कर रही है। abuse of authority by control owner and do the cost benefit analysis. cost benefit analysis किस करेगी? क्या देगा सामने वाला तुमको as a gift? So that is what is cost benefit analysis. Going to the next part of the slide. Controls relevant to audit. ये कौन से controls हैं जो relevant है किसी भी audit के लिए? तो whenever there is a question, whatever I am teaching you, please ध्यान दीजिएगा. This is exactly an examination question. What are the internal controls that are relevant to the audit? कौन से ऐसे कंट्रोल्स है, क्या क्या चीज ऐसे कंट्रोल में लगाओगे? जैसे मैंने ताला चाबी लगा दिया यहाँ। So what exactly is this? Pardon me on my drawing, yeah. So internal control जो relevant है audit के लिए। Now imagine कि घर वाले एक लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तो उससे क्या पूछेंगे? मिस्टर तुम क्या काम करते हो? व्हाट एग्जैक्टली इज योर वर्क? तुम्हारा बिजनेस क्या है? उसमें ओनरशिप कितनी है? ऐसा तो नहीं है पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हारा सिर्फ 5% स्टेक है और कुछ नहीं है, और बिजनेस भी बहुत छोटू सा है। बड़े बिजनेस में बड़े वाले बिजनेस में तो 5% स्टेक भी काफी अच्छा होता है। तो बिजनेस में व्हाट इज योर ओनरशिप? क्या तुम लॉ रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई और फॉलो करते हो? एंटिटी की साइज कितनी है? एग्जैक्टली व्हेन आई सेड ओनरशिप, तो एंटिटी की साइज क्या है? कौन से ट्रांजैक्शंस है, कितने हो रहे हैं और कितने डाइवर्सिफाइड हैं? कुछ इंडिया में कर रहे हो, कुछ बाहर में कर रहे हो, कितने डाइवर्सिफाइड हैं, कितने का पेमेंट आ रहा है, कितने का नहीं आ रहा है, दैट इज टू बी सीन हाउ डाइवर्सिफाइड इट इज। देन व्हाट यू विल सी components of internal control. I'll eventually teach you components of internal control भी कुछ होता है। ये components of internal control का short form है मिक्रा। we'll read it later, okay? But before that हम अभी क्या देख रहे हैं? कंट्रोल्स जो एक ऑडिट में लगेंगे। तो कौन से कंट्रोल्स हैं जो ऑडिट में लगेंगे? कौन से कंट्रोल्स है? जब आप कोई लड़का देखने जाते हो तो आप चेक करते हो, मिस्टर आप कौन सा बिजनेस करते हो, आपकी ओनरशिप कितनी है, आप लॉ रेगुलेशंस फॉलो करते हो कि नहीं, साइज क्या है, उसमें कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने डाइवर्सिफाइड है। आपके इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स को चेक कर रहे हैं, और आपका कंट्रोल इंडिविजुअली या ओवरऑल इन टोटल या एग्रीगेट में क्या प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट। जब भी कोई डिजीज होता है ना तो प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वैसे भी इंटरनल कंट्रोल, वो भी किस में? रिलेवेंट टू ऑडिट।
तो तुमको क्या देखना है इसमें, जो कोई डॉक्टर आता है तो क्या करता है, प्रिवेंट, सबसे पहले डिटेक्ट करता है, फिर उसको प्रिवेंट करता है, पता चल गया, फिर उसको प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा, फिर प्रिवेंट करेगा, एग्जैक्टली या पहले से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की लाइंस में जा रहे हो तो पहले प्रिवेंट कर लोगे, बाद में कुछ डिटेक्ट हो गया तो आप उसको क्या करोगे, करेक्ट कर दोगे। व्हाट इज दैट, ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल कैसा है कि वो इंडिविजुअल या एग्रीगेट में जो भी आपके मटेरियल में स्टेटमेंट है उसको क्या कर रहा है, प्रिवेंट, डिटेक्ट या कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं। नाउ व्हाट इज एम हियर, एम इज योर लेवल ऑफ materiality. What is level of materiality? We'll read in this chapter. This is SA 320. Now, what exactly is R here? यहाँ पे R क्या है? R इस चैप्टर में है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। R क्या है यहाँ पे? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है उसका सिग्निफिकेंट और रिलेटेड रिस्क। रादर इसको ज्यादा बेटर तरीके से लिख सकते हैं, ओके तुम क्या काम, इट्स बेटर टू राइट रिलेटेड risk. What kind of risk? Related risk. Let me just look around. Okay. So what do you see, Mr. तुम क्या काम करते हो? Exactly, this is what I said. So when I said this, what I meant is, first is materiality, SA 320. Second is related risk. रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट में भी कौन सा, जो आपकी रिलेटेड रिस्क होगी। थर्ड चीज क्या है वहां पे, आपका बिजनेस क्या है, आपकी ओनरशिप क्या है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हो, क्या साइज है आपकी एंटिटी का, आप लॉ रेगुलेशंस फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे, और इंडिविजुअली और एग्रीगेट में वो इंटरनल कंट्रोल क्या रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट कर पाएंगे या नहीं। व्हाट इज नेक्स्ट हियर? So the next thing here is nature and extent of understanding the relevant controls. क्या nature और क्या extent तक आप understand कर सकते हो in relevant controls को। So when I say nature and extent of internal controls, internal control किस nature का होगा, किस मिट्टी का बना होगा exactly, और उसका एक्सटेंट, उसके दायरे कितने होंगे, उसकी बाउंड्रीज कितनी होंगी, एक्सटेंट कितना है, कितना फैला हुआ है वो बेसिकली। नाउ इन ऑर्डर टू चेक दिस, इसको चेक करने के लिए आप क्या लगाते हो उसमें, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू चेक इंटरनल कंट्रोल। व्हेन आई से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, व्हाट एग्जैक्टली इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? अगर आप बुक्स में अपनी जाके देखोगे तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में दिया हुआ है ICAI ORR, दीज आर योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसमें ICAI ORR एग्जैक्टली क्या चीज होती है, योर इंक्वायरी, योर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को देखना, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस, ये चीजें क्या होती है, ICORR। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, किस तरीके से आप ऑडिट एविडेंस ला सकते हो, उसी तरीके से आप नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इंक्वायरी करके यस, इंस्पेक्शन करके यस, व्हाट इज नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन करके, इंक्वायरी करके यस, इंस्पेक्शन करके यस, एंड ऑब्जर्वेशन करके। बाकी सारी चीजों को मैंने काट दिया है। ये मेथड है जिससे आप नेचर और एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल को स्टैब्लिश कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज को यहाँ पे इवेंचुअली जानबूझकर इंसर्ट किया गया है, व्हाट इज दैट वन लाइन, ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, आपको ट्रेस करना है, ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शंस दैट गोज इनटू द इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट फॉर योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो जिससे कि आप क्या करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग निकालोगे।
वहां पे एक वर्ड लिखा है इंक्वायरी। इंक्वायरी का सबसे फेमस क्वेश्चन क्या है? इंक्वायरी अलोन इज हाउएवर नॉट सफिशिएंट फॉर सच पर्पसेस। अगर आपको नेचर और एक्सटेंट देखना है इंटरनल कंट्रोल का, तो इंक्वायरी जो होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस के 3 पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल में। और क्या देखना है? इंडिविजुअली और एग्रीगेट में जो कंट्रोल है, क्या वो प्रिवेंट, करेक्ट और डिटेक्ट कर सकते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। वेरी कॉमन टू द लास्ट पॉइंट्स दैट वी सॉ। हमने यहाँ पे भी ये देखा था लास्ट में। किसमें देखा? कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट। ये पॉइंट कहाँ पे भी सेम है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल्स। और आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कंट्रोल्स को, लगा रहे हो कंट्रोल्स को, कहाँ कहाँ पे लगा रहे हो? क्या वो लगाने के बाद अगर बराबर चल रहा है तो ग्रेट इनफ? नहीं, इट इज नॉट गोइंग गुड इनफ। सो देयर इज अ मटीरियल वीकनेस इन सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल का एक वर्ड है मटीरियली वीक हो जाना। मटीरियली वीक हो जाना मतलब इंटरनल कंट्रोल कैसा? स्ट्रांगली काम नहीं कर रहा है, वीकली काम कर रहा है। सो व्हाट इज implementation of internal control? is what? Materially weak है क्या? This is to be checked. Now coming to the next part is audit risk. बहुत frequently asked question आपके examination में। आपका risk क्या है? If you are giving your May 24 attempt, what is your risk? You know what your risk is? 40 मार्क्स नहीं मिले और एग्रीगेट के 50 मार्क्स नहीं मिले, ओवरऑल 200 मार्क्स नहीं मिले, तो आई फेल माई एग्जामिनेशन। तो दैट इज योर रिस्क। पेपर बहुत हार्ड आ जाते हैं तो दैट इज योर रिस्क। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑडिट के रिस्क की। ऑडिट का रिस्क इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। नाउ व्हाट इज ऑडिट रिस्क? इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। ऑडिटर, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑडिटर अगर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है, वो भी कब? इनअप्रोप्रिएट ऑडिट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, और ये फ्रॉड एंड एरर प्रायर टू ऑडिट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। इसके ट्रू और फॉल्स भी आते हैं, करेक्ट एंड करेक्ट। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी ये आता है कि बिफोर ऑडिट देखते हैं या आफ्टर ऑडिट देखते हैं। तो रिस्क ऐसी चीज है जिसके कारण ऑडिटर कैसा देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी देगा? वो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देगा। वो भी किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जब वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, उसमें फ्रॉड एंड एरर है, वो भी कब? प्रायर टू ऑडिट, ऑडिट के पहले, राइट? व्हाट इज नेक्स्ट? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एक चीज होती है यहाँ पे। व्हाट एग्जैक्टली इज ऑडिट रिस्क? अगर मैं इसकी एक इक्वेशन बनाऊं तो आती है रिस्क ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट into detection risk. This is detection risk. यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के 2 सब पार्ट होते हैं, इनहेरिएंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे थे? इंटरनल कंट्रोल पढ़ रहे थे, तो आपको कंट्रोल से भी एक रिस्क हो सकती है और इनहेरिएंट भी एक रिस्क हो सकती है। व्हाट इज इनहेरिएंट रिस्क? बाप दादा का पूरा जो वसीयत होती है, विरासत होती है, वो किसकी होती है? नेक्स्ट जनरेशन की होती है। लोगों के आई कलर होता है ना, वो पर्टिकुलर ब्लू आई टोन चल रहा है, मतलब ब्लू आइश का एक टिन चलता है, और वो फैमिली में कुछ जनरेशन पहले भी होता है, बाद में वो डोमिनेंट होके हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी आता है। व्हाट इज दैट? इनहेरिटेंस में मिलने वाली चीज, कोई ऐसी चीज जिसको आप रोक नहीं सकते हो, इज व्हाट इज इनहेरिटेड। तो यहाँ पे इसको क्या बोला है? इनहेरिएंट रिस्क। यहाँ पे क्या बोला है? कंट्रोल रिस्क। Now, what exactly is inherent risk and what exactly is control risk? Inherent risk मतलब वो रिस्क अगर हमने एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लगाया ही नहीं है, इफ देयर इज नो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन एन एंटिटी, इन दैट केस जो रिस्क होता है उसको क्या बोला जाता है? इनहेरिएंट रिस्क। अगर आप अपनी बुक में देखोगे, मेन बुक में, सो वेयर इज दिस पर्टिकुलर थिंग गिवन? इट इज गिवन इन द फ्रंट ऑफ चैप्टर 3.6 1.2a में। मतलब बिना इंटरनल कंट्रोल के जो रिस्क है वो जब आती है तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिएंट रिस्क। मतलब इसको आप रोक नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तो ये कैसी रिस्क हो गई? इनहेरिएंट रिस्क।
लेकिन आप कौन सी रिस्क देखोगे? आप कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क कैसी होती है? यहाँ पे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं था। अगर आपने बहुत अच्छी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा के भी रखी है, उसके बाद भी जो आपके अकाउंट बैलेंसेस हैं, ट्रांजैक्शंस या क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस है, डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन है, वहां पे अगर कोई मटेरियल में स्टेटमेंट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल रिस्क। मतलब इन स्पाइट योर इंटरनल कंट्रोल्स आर वेरी गुड, यू आर अनएबल टू व्हाट prevent, control and prevent, correct or detect your material misstatements, तो उसको क्या बोलोगे? कंट्रोल रिस्क, राइट? नाउ देयर इज द थर्ड रिस्क। ऑडिटर तो बहुत अच्छी ऑडिट की प्लानिंग करके जाता है। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कंट्रोल रिस्क का, ठीक है? अपने लॉकर रूम का एक्सेस जो होता है बैंक्स में, वो 2 फैक्टर ऑथराइजेशन से होता है। उसमें 2 लोग साइन करते हैं, 2 कीज लगती है, उसके बाद वो ओपन होता है, राइट? मान लो पूरा इंटरनल कंट्रोल का सेटअप था, ऑथराइज्ड आदमी ही लॉकर को खोल सकता था, लेकिन ये ओवरराइड हो गया, फॉलो ही नहीं हुआ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंट्रोल रिस्क। फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए बैंक में, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो काम ही नहीं करता है, रिफिल ही नहीं होके रखा है, स्मोक डिटेक्टर्स बंद पड़े हैं। कंट्रोल एक्चुअल में तो प्रेजेंट है, लेकिन कंट्रोल्स कितने भी इफेक्टिव होने के बाद वहां पे क्या है? थोड़े फ्लॉज है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की चांसेस है। नाउ व्हाट आर दीज? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल रिस्क। नाउ व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? डिटेक्शन रिस्क को बताया गया है कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगा भी देगा, डिटेक्शन रिस्क, राइट? अगर ऑडिटर ने पूरा ऑडिट प्रोसीजर लगाया भी तो भी जो रिस्क बच जाएगा, द रिस्क दैट इज लेफ्ट हियर, जो बच गया, उस रिस्क को क्या बोलते हैं? डिटेक्शन रिस्क। नाउ इसको डिटेक्शन रिस्क बोला जाता है। मान लो कि जो जो भी तुम्हारा ऑडिट हो रहा है उसमें तुमने कोशिश की बहुत अच्छे से सारी चीजों को डिटेक्ट करने की, फिर भी वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ डिटेक्शन रिस्क। बुक में एक चीज दी हुई वापस से, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देता है, जब वो मटीरियली मिसस्टेटेड होते हैं, वो भी कब? प्रायर टू द ऑडिट, तो उसको क्या बोला जाता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको ऑडिट रिस्क बोला जाता है। ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट्स, पहला क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा क्या है यहाँ पे? द सेकेंड थिंग हियर इज डिटेक्शन रिस्क। एक मैनेजमेंट की गलती से होता है, दूसरा किसकी गलती से होता है? ऑडिटर की गलती से होता है, राइट? एंड कौन सी ऐसी चीजें जो ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थिंग्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं बनती है। अगर मान लो लिटिगेशन के केसेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिटिगेशन के केसेस है, तो वो मेरा ऑडिट रिस्क नहीं है। मान लो एडवर्स या नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है मार्केट में मेरी कंपनी के बारे में, सो दैट इज ऑल्सो नॉट माई ऑडिट रिस्क, उससे मेरा कोई ऑडिट रिस्क का रिलेशन नहीं है। या कोई भी दूसरे इवेंट्स जो इन कनेक्शन में ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अदर इवेंट्स, तो वो क्या है मेरे लिए? दीज आर नॉट माई ऑडिट रिस्क। 3 चीजें जो ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं बनती है, लिटिगेशन, एडवर्स अगर पब्लिसिटी हो रही है मार्केट में, और थर्ड कोई अदर इवेंट्स जो अराइज हो रहे हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट आई एम ऑडिटिंग आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑडिट रिस्क। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? डेफिनेटली यस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब ये जो डिटेक्शन रिस्क है, इसके 2 पार्ट्स बताए हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। जब भी आप ऑडिट करते हो तो एक पर्टिकुलर सैंपल साइज निकालते हो। अगर 1000 ट्रांजैक्शन है तो तुमने सोचा 800 से 900 के ट्रांजैक्शन को आई चेक, सो व्हाट इज दैट? दैट इज सैम्पलिंग दैट यू आर डूइंग। अगर आप सैंपल बेसिस पे टेस्ट कर रहे हो या सैम्पलिंग लगा रहे हो वहां पे, तो एज सुन एज यू यूज सैम्पलिंग, तो उसमें सैम्पलिंग रिस्क होगा क्या? हाँ। अगर पूरी पॉपुलेशन का तुम ऑडिट कर भी लेते ना, तो जो रिस्क तुम्हारे सैंपल में आए वो पूरी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है ही नहीं।
वापस से सुन लो, जो रिस्क तुम लेके आए हो सैंपल को चेक करने के बाद, वो एक्चुअल में अगर तुम पूरी पॉपुलेशन को चेक करते, पूरे सैंपल साइज ऑफ पॉपुलेशन को चेक करते, तो भी वो रिस्क अगर नहीं आता, तो दैट इज व्हाट इज सैंपलिंग रिस्क. व्हाट इज नॉन सैंपलिंग रिस्क? नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? ऐसा सैंपल, मतलब ऐसा रिस्क जो हमको हमारे ऑडिटर को एक एरनियस कंक्लूजन के ऊपर लेके जाता है. वो भी उसमें सैंपल साइज कुछ थी क्या? नहीं, कोई सैंपल साइज नहीं थी उसमें. आपने इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगाया और इनअप्रोप्रिएट डिसीजन लिया, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन लाया, इनअप्रोप्रिएट प्रोसीजर किया. अब जो रिस्क आई वो कौन सी रिस्क? नॉन सैम्पलिंग रिस्क, जहां पे आपने सैम्पलिंग की टेक्निक यूज नहीं की है. व्हाट इज दैट? दैट इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क, राइट? Now what we'll see is the next thing here. Condition that increase risk of fraud and error. Fraud and error 240 का पार्ट है. ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिससे फ्रॉड एंड एरर का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? तो वो कंडीशंस जिससे फ्रॉड एंड एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आर as follows. What is the first thing here? अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, बहुत ही वीक है, तो उस केस में क्या होगा? फ्रॉड एंड एरर बहुत ज्यादा होंगे. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वीक या कंप्लाई ही नहीं करते, वीक. और वीक या कंप्लायंस नहीं होता इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का. सो व्हाट इज दैट? इट इज अ कंडीशन जिससे अब फ्रॉड एंड एरर क्या होगा? अराइज होगा, राइट? व्हाट इज द सेकेंड थिंग हियर? अगर मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी हियर, अगर इस पे आपको डाउट है कि वो लेट डाउन जो प्रोसीजर है उसको करता नहीं है ढंग से, उसमें इंटेग्रिटी है जो मैनेजमेंट की, और जो उसकी कॉम्पिटेंस है वो एक्चुअल में कॉम्प्रोमाइज अगर हो जाती है, तो व्हाट विल हैपन? फ्रॉड एंड एरर क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट? नाउ फर्स्ट थिंग इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, राइट? या फिर ऐसा है कि वो कंप्लाई ही नहीं कर रहे हो. सेकेंड थिंग, अगर मैनेजमेंट है तो वो उसकी इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस कैसी है ही नहीं वहां पे उस एंटिटी में, या अनयूजुअल प्रेशर है एंटिटी में, काम करने का प्रेशर, राइट? काम करने का भी कैसा, जिससे फ्रॉड एंड एरर हो जाओ. अनयूजुअल प्रेशर है, प्रॉफिट बढ़ा बढ़ा के दिखाओ, सब कुछ इन्फ्लेट करके लगा दो. व्हाट इज दैट? दैट इज अनयूजुअल प्रेशर. अनयूजुअल प्रेशर वो भी किसके ऊपर? एंटिटी के अंदर एज अ होल. कहाँ पे हो रहा है ये? एंटिटी में हो रहा है. अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. व्हाट आर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन? जो डेली बेसिस में नहीं होते, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, या बहुत हाई वॉल्यूम के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. तो व्हाट आर दीज ट्रांजैक्शंस? उससे फ्रॉड एंड एरर हो सकता है उस कंडीशन में. या फिर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, द बेसिक ऑफ ऑडिट, अगर आपको नहीं मिल रहा है, और थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन नहीं मिल रही है. थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन नहीं मिल रही है मतलब कौन सा ऐसे हो गया? ऐसे 530 एक्सटर्नल कंफर्मेशन. अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो दैट इज अ रिस्क. इफ दिस काइंड ऑफ रिस्क दे एग्जिस्ट, तो क्या हो जाएगा? आपके ऑडिट में फ्रॉड एंड एरर रहेगा, रिस्क बढ़ जाएगी फ्रॉड एंड एरर की. दो चीज अनयूजुअल, अनयूजुअल प्रेशर, अनयूजुअल प्रेशर, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट थिंग अपन ने उसमें क्या देखी थी? इंटरनल कंट्रोल कैसा है? वीक है या फिर कंप्लाई नहीं हो रहा है. सेकेंड चीज जो आपने क्या देखी थी वहां पे? मैनेजमेंट जो है उसकी इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्प्रोमाइज है. थर्ड चीज क्या है वहां पे? लास्ट चीज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब आपका बेसिक जो है ऑडिट का वो ही आपको नहीं मिल रहा है, थर्ड पार्टी ही कंफर्मेशन नहीं दे रही है, आपके पास कोई भी चीज क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली आपको मिल ही नहीं रही है. नाउ व्हाट विल हैपन? दैट नाउ
comes a part of assessment of misstatement. मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स का जब आप असेसमेंट करोगे तो वो दो स्टेज में कर सकते हो, एक फाइनेंशियल लेवल पे कर सकते हो, एक असर्शन लेवल पे कर सकते हो. When I say about assertion level, I talk about everything like A, B, C and D. मतलब अकाउंट बैलेंस में, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में या डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन में, ये सारे असर्शन लेवल पे हम जब काम करते हैं तो हम अपने ऑडिट का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करते हैं. नाउ असर्शन लेवल पे whenever we read the chapter audit evidence, we read that there are certain assertions in the audit. What are those assertions? ये assertions क्या होते हैं? Cover, MP. What is C? Completeness. What is O? What is V? Valuation. E? Existence. Right and obligation. M? Measurement. And P? Your presentation and disclosure. And O is your observation. So whenever these are the assertion level, हर transactions में, हर बैलेंस में आपको असर्शन लेवल चेक करना पड़ेगा. मटेरियल में स्टेटमेंट जो होता है वो दो लेवल पे होता है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या असर्शन लेवल पे. असर्शन लेवल आपके बैलेंस शीट पीएल के जो भी आइटम्स होते हैं, जितना भी अकाउंट बैलेंस होता है, जितना भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन करते हो और जो भी डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन देते हो, वो असर्शन लेवल पे मिसस्टेटमेंट्स हो गए. फाइनेंशियल लेवल पे मतलब इसको प्रिपेयर कौन करता है? मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के लेवल पे जो मिसस्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है? प्रिपेयर करता है. तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी, मैनेजमेंट की क्या? इंटेग्रिटी. मैनेजमेंट की क्या? रिलायबिलिटी. इफ दिस इज बैड, what will happen? Material misstatements will occur. So when will you assess material misstatements? At two level. Financial statement level. Financial statement मतलब financial statement कौन prepare करता है? Management की responsibility financial statement prepare करना. उसकी integrity, उसकी reliability, उसकी competence की सारी अगर खराब है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तुमको क्या मिलेगा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट लेवल, या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेगा, या फिर असर्शन लेवल पे. असर्शन मतलब ABCD, अकाउंट बैलेंस, या फिर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन के टाइम में जब आप कंप्लीटनेस, ऑब्जर्वेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, रिलायबिलिटी, राइट एंड ऑब्लिगेशन, मेजरमेंट और उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये सारी चीजों को जब आप चेक करते हो तब आपको जो चीजें दिखती है, O is your occurrence here. O is your occurrence here. Occurrence जब आप इन्वेंट्री को चेक करते हो तब आप उसका occurrence चेक करते हो. I don't know if I said it wrong. Let me make it very clear. C is your completeness. O is your occurrence. V is your valuation. E is your existence. R is your right and obligation. M is your measurement. P is your presentation and disclosure. ये सारे assertion level पे जब हम financial statement को draft करते हैं, उस लेवल पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है. क्या ये भी एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है? ये पीछे वाला. द आंसर इज यस, दिस इज आल्सो अ एग्जामिनेशन क्वेश्चन. दो लेवल पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिलते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. इसकी डेफिनेशन के बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में. व्हाट एग्जैक्टली इज रिस्क असेसमेंट? अगर मैं रिस्क असेसमेंट करूं, तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क क्या है? तुमने प्रिपरेशन नहीं की, दैट इज अ रिस्क. तुमको मार्क्स 40 से नीचे मिले, दैट इज अ रिस्क. तुम्हारा मटेरियलिटी लेवल ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा है, दैट इज अ रिस्क. मतलब रिस्क असेसमेंट एक प्रोसीजर है. तो रिस्क असेसमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है? रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप किसको आइडेंटिफाई करोगे? रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे. तुम आइडेंटिफाई करते हो ना, कौन सा पेपर मेरा वीक है, किसमें मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट वीक है बेसिकली. तो आइडेंटिफाई दैट, assess it, evaluate it. जब आप उसको evaluate करोगे तो you are doing what? Risk evaluation. तो risk assessment process में it is a procedure in which you actually assess risk, identify risk, assess risk, evaluate risk. फिर आप relate करते हो identified risk को at assertion level, कि कौन कौन से assertion level पे गलतियां हो सकती है अगर ये risk रहेगी. So you relate the identified risk. आप उस identified risk को relate कर सकते हो कि कौन कौन से assertion level पे गलतियां हो सकती है. It relates to which assertion level. This particular risk relates to which particular
assertion level. Then consider the likelihood of possibility of misstatements. क्या chances है कि misstatement हो जाएगी? Now risk assessment process, risk assessment procedure का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है. दोनों लेवल पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया जाता है. कौन कौन से लेवल पे? फाइनेंशियल रिस्क स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे. आप क्या चेक कर रहे हो? रिस्क को चेक कर रहे हो. सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे. सबसे ज्यादा रिस्की कंट्री कौन सी है? ईरान, इराक. नाउ IRAC. नाउ आइडेंटिफाई करोगे, उसको एसेस करोगे, उसके बाद उसको रिलेट करोगे. रिलेट कर लिया, उसके बाद उसको क्या करोगे? कंसिडर. कंसिडर क्या करोगे? पॉसिबिलिटी क्या है मिस स्टेटमेंट की, लाइकलीहुड, चांसेस या पॉसिबिलिटी क्या है मिस स्टेटमेंट्स की. सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मीनिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे आप रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट लाते हो. IR इंटू CR. किसका? वो भी इंटरनल कंट्रोल को आप पूरा चेक करते हो उसमें. या कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कोई फ्रॉड एंड एरर के कारण तो नहीं हो रहा है. व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू चेक? इट इज द प्रोसीजर इन विच यू चेक व्हाट ऑल थिंग्स. रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट्स कोई फ्रॉड एंड एरर के कारण तो नहीं हो रहा है, उसका एंटिटी का क्या देखोगे? इंटरनल कंट्रोल. कौन कौन से लेवल पे देखोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है. असर्शंस क्या होते हैं? कवर, MP. यहाँ पे A, B, C और D. अकाउंट बैलेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन के समय कोई भी असर्शन को हम हिट तो नहीं कर रहे हैं जिससे क्या आ रहा है? मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है. इससे आप क्या बोलते हो? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. नाउ व्हेन आई टेक यू टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बोला था, रिस्क असेसमेंट कंपोनेंट्स के प्रोसीजर वापस ICAI ORR से आया है. यहाँ पे क्या आया? कंपोनेंट. पहला कंपोनेंट क्या है? इंक्वायरी. सेकेंड एनालिटिकल प्रोसीजर. थर्ड इंस्पेक्शन. एंड फोर्थ इज व्हाट? योर ऑब्जर्वेशन. आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा. जब भी आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करोगे तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के लिए उसके आप कंपोनेंट्स, अगर एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हमको ऑडिट के पेपर में, पूछा क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मीनिंग पूछा है या उसके कंपोनेंट्स पूछे हैं? इसके पहले भी हमने ICAI ORR से एक जगह पे डील किया था. व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट प्लेस जहां पे हम देखे थे ICAI ORR को? ICAI ORR को आपने देखा था रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर में. इसके अलावा तुमने कहाँ देखा था? हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल में भी जब हम क्या चीज को देखते हैं तभी आता है नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल. जब हमने नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ा था, तब वहां पे ICAI ORR लगा था. वहां पे आपने लास्ट में क्या दिखाता था? ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाके ट्रेस किया था. वहां पे भी ICAI ORR था. ये दोनों कैंसिल थे. एनालिटिकल प्रोसीजर कैंसिल था. वहां पे आपने इंक्वायरी देखी थी, उसका ऑब्जर्वेशन किया था, इंस्पेक्शन किया था और उसकी कंप्लीटनेस देखी थी. उसका एनालिटिकल प्रोसीजर भी किया था. एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं, उसका एनालिटिकल प्रोसीजर भी किया था. राइट. सो दिस केम अप इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. ना एनालिटिकल प्रोसीजर किया था ना C किया था. I need to cut this particular thing here and reframe it, that when we did nature and extent and understanding of internal control, we took this particular thing ICAI ORR. उसमें we did not take recalculation, reperformance, but we took observation, inspection and inquiry and traces of transactions that moved through the information system. Now what went next here was कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इंक्वायरी होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, इंस्पेक्शन होता है और ऑब्जर्वेशन होता है. इंस्पेक्शन किसका करोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में? उसके ऑपरेशन का, उसके डॉक्यूमेंट्स का, रिपोर्ट का, प्रमाइसेस का, प्लांट्स की फैसिलिटी का.
इतनी सारी चीजों का आप क्या कर रहे हो, रिस्क assessment procedure कर रहे हो. When you do such kind of risk assessment procedure, it is called as components of risk assessment procedure. From where it is coming? ICAIORR. What are these? Methods of obtaining audit evidence. What next? Now, SA 315. When I'll take SA 315, let me tell you, SA 315 एक बहुत ही important SA है. सबसे important चीज है SA 315 का नाम याद कर लो भैया. When once you remember SA 315's name, it is something where half of your battle is won. Understanding it is half of your battle won. तो अब इसमें क्या है, ऐसे 315 का नाम क्या है, आइडेंटिफाइंग. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, फिर आप क्या कर रहे हो, एंड एसेसिंग. किस चीज को, हम इस चैप्टर का नाम क्या पढ़े हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. तो यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. Identifying and assessing risk of material misstatement by through an understanding. उसमें आप किसको समझने की कोशिश कर रहे हो, through an understanding of what two things, entity, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो एक कोई इंडस्ट्री है ये ABC, इसको समझ रहे हो आप, एंटिटी को, और एंटिटी के पूरे इन्वायरमेंट को. इन्वायरमेंट मतलब वहां पे क्या क्या चीज उस जगह में प्रोसेस और वर्किंग होती है. तो आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे, बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट. बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट, एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट. एक बात है, 315 का नाम आपको 110% याद होना ही होना चाहिए. Once you remember it, it becomes very very easy for you to write in examination hall every single thing. Now, सबसे important question जो है इसमें, how do you understand, entity को कैसे समझोगे. How do you understand entity? How do you understand the entity? Entity को कैसे समझोगे. इसका एक शॉर्ट फॉर्म है IREFANO. कोई भी एंटिटी है, अगर उसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है उसके बिजनेस को, तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, राइट. उसका नेचर ऑफ बिजनेस होगा, उसके बिजनेस का नेचर. When I say nature of business, it is divided into 4 parts. 4 business कौन सा करती है, ऑपरेशन कौन सा करती है, ओनरशिप किसके पास है. मान लो रिद्धि, तो एंड माय ब्रदर इज राजीव, मेरे पास 10% है, उसके पास 90% है, ओनरशिप. देन व्हाट आई हैव टू सी इज, मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है और मैंने कितना परसेंट फाइनेंस करवा के रखा है. तो ऑपरेशन, ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, ठीक. देन व्हाट इज दिस ए हियर, मैं क्या कर रही हूँ, किसी एंटिटी को समझने की कोशिश. व्हाट इज माय IRE, what is my O is my objective of the company, what is N, nature of the company, उसका ऑपरेशन, ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट, और उसकी फाइनेंसिंग, की फाइनेंसिंग कैसे हुई है. व्हेन आई से उसकी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने क्या लगा के रखे हैं, कहाँ कहाँ पे उसने इन्वेस्ट करके रखा है. और सेकेंड चीज क्या बोला उसमें, एंटिटी ने कैसे फाइनेंसिंग करके रखी है, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या है, ठीक. उसके बाद हमको क्या देखना है, ए, उसने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या लगा के रखी है. उसमें अगर कोई चेंज करते हैं तो हमको क्या बताना पड़ता है, रीजन भी बताना पड़ता है, राइट. अकाउंटिंग पॉलिसी, उसका रीजन भी बताना पड़ता है.
देन व्हाट एग्जैक्टली इज एफ हियर? यहाँ पे एफ क्या है? एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट पीएल देख रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे। व्हाट इज आईआर? कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से रेगुलेशंस उसके ऊपर, रेगुलेशंस, कौन से रेगुलेशंस उसके ऊपर लगते हैं, और उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है। नाउ दिस इज अ 8 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम। आपको डायरेक्टली पूछता है, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है किसी भी एंटिटी की, तो आप उस एंटिटी को कैसे समझ सकते हो? हाउ डू यू अंडरस्टैंड एन एंटिटी? अगर आपको किसी एंटिटी को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो द मेजर थिंग इज आपको IRE FNO करना पड़ेगा। आई take it, I'll deal it with once more. FNO, O is your objectivity, N is your nature, नेचर में उसका ओनरशिप, उसका फाइनेंसिंग, उसका इन्वेस्टिंग, और वो एंटिटी कौन सा ऑपरेशन करती है। व्हाट इज आई हियर? वो कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा रेगुलेशन उसके ऊपर लगता है। उसके बाद ई है यहाँ पे, उसका एग्जैक्ट वर्ड है वहां पे जो दिया हुआ है, ई से अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स तो नहीं लगते हैं। F is your financial performance, A is your accounting policy, वो कौन सी सिलेक्ट करती है, को अप्लाई करती है, और कोई चेंज करती है तो उसका रीजन बताओ। So this is something that comes in your examination. How do you understand an entity? आप एक एंटिटी को कैसे कैसे समझते हो? हमने अभी क्या पढ़ा था? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, राइट? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आप आइडेंटिफाई करते हो इराक, रिस्क सबसे ज्यादा इराक से आइडेंटिफाई करते हो, एसेस करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो, रिलेट करते हो आइडेंटिफाइड रिस्क को, हर असर्शन लेवल में क्या क्या चीज हमसे गलत हो सकती है, और कंसिडर करते हो उसका इफेक्ट, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी कि कितना मिस स्टेटमेंट हो सकता है, कौन कौन से लेवल पे होता है। दो असर्शन, दो लेवल पे आप असेसमेंट करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी चेक करोगे। असर्शन लेवल क्या होता है? कवर MP में अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर को आप चेक करोगे, राइट? What is the next thing that we'll be dealing with is नीड। क्या जरूरत क्या है तुमको एंटिटी को अंडरस्टैंड करने की? नाउ I'll sum up here. I think I'll sum up the whole chapter here after these 2 slides, taking you to the main study module. Now, what is the need to understand the entity? आप उसको एटलीस्ट मेन एरियाज तो समझो। जरूरत क्या है उस एंटिटी को समझने की? आपको उसके मेन एरियाज को समझना है। व्हाट आर योर मेन एरियाज? आपको उसके मटीरियल एरियाज को समझना है, उसकी मटीरियलिटी को चेक करना है। मटीरियलिटी इज SA 320। देन व्हाट यू हैव टू सी योर मेन एरियाज, मतलब आपको उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर करना है। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट चेक करना है, इसलिए वो पूरी एंटिटी में IRE FANO इसलिए लगा रहे थे क्योंकि उसमें आप एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट देखोगे। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो भी आपको मिलेगा, दिस इज योर E ऑफ एरियाज। देन अकाउंटिंग पॉलिसी उसने क्या अप्लाई की उसको चेक करोगे। और व्हाट इज योर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, कौन कौन से एरिया में तुमको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेना है, इसको तुम क्या करोगे? देखोगे। यू हैव टू सी एरियाज इन विच और एरियाज दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? जब आप एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हो तो IRE FANO लिखते हो, लेकिन जब आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके हो, नाउ रीजन क्या है, जरूरत क्या है, नीड क्या है, आप उसको क्यों अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज देखनी है? मटीरियलिटी, मेन एरियाज को चेक करो। मटीरियलिटी उसका एरिया में है एनालिटिकल प्रोसीजर, R इज योर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, E इज योर इवैल्यूएट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस,
and A is your accounting policy and S is your special consideration for specific item audit, special audit consideration. कौन से ऐसे areas है? Now I made a asterisk here. It is taken over here. एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा एरिया जिसको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी पड़ती है? ऐसा एरिया जहां पे फ्रॉड हुआ है, उसकी तुम क्या करोगे? ज्यादा चेकिंग करोगे, ज्यादा गौर से उसको देखोगे. देन ऐसा एरिया जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसको तुम बहुत ध्यान से देखोगे. कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, या कोई अदर डेवलपमेंट या चेंज हो रहा है, कोई नया एसए आ गया, कोई नया एएस आ गया, मान लो कोई भी नई नई टाइप की अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कोई नए ऑब्जेक्टिव्स आ गए, कोई नया टाइप का ऐसे नई टाइप की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो इट हैज टू बी एड्रेस. वो ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट के लिए भी क्या है, न्यू एरिया है. तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. तो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगेगा? फ्रॉड वाला एरिया, कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन वाला एरिया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन वाला एरिया, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. जहां पे अनयूजुअल ट्रांजैक्शन इज योर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट मतलब अमाउंट में मान लो 1 लाख का जो ट्रांजैक्शन, 10,000 का ट्रांजैक्शन छोटी मोटी एंटिटी के लिए बहुत रिलेवेंट हो जाता है, लेकिन बड़ी एंटिटी के लिए कम रिलेवेंट होता है. तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, उसको आप देखोगे, कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, और डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट. ये ऑडिटर का जजमेंट लगेगा कि भैया इसको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना है क्या. ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना पड़ेगा? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड में हुआ है, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जहाँ पे फ्रॉड इन एरर दिख रहा है, उसको ज्यादा चेक करो. अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज हो रही है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, या कोई अदर डेवलपमेंट हो गया, उसके कारण कोई चेंज हो रहा है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, उसको चेक करो. कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको चेक करो. बट ये सारा क्या है? ऑडिटर की डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट. ऑडिटर अपनी डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी लगाएगा, उसके हिसाब से उसको बोलेगा कि यहाँ पे हमको क्या देना है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. नाउ टू बी ऑनेस्ट, वी हैव lump sum covered the particular chapter of internal control and risk assessment. Now, things that are left here in the chapter are materiality को मैंने अभी तक cover नहीं किया है. So what I'll do in my next lecture is I'll cover the materiality part, and मैंने internal auditor का part SA610 internal auditor का part, components of internal control, evaluation of internal control by auditors, और इंटरनल कंट्रोल. बेसिकली इंटरनल कंट्रोल भी नहीं, इंटरनल ऑडिट. व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनल ऑडिट? मेरा जो चीज बचा है यहाँ पे वो है मटीरियलिटी, इंटरनल ऑडिट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ये सारी चीजों को आई विल कवर इन माय नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 3, and I'll show you in your study material. Now just see your study material. If you go through your study material, audit risk, ये हो गई ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन. एंड यू हैव ऑलरेडी डन दिस कि अगर कोई इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मटीरियली मिसस्टेटेड होते हैं, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर ऑडिट. इससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. देन components of risk of material misstatement. Now these are the components of risk of material misstatement. We have already done this. Audit risk का 2 पार्ट होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क. उसमें हमने क्या देखा, इनहेरिएंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, राइट. एंड व्हाट वी हैव नॉट सीन हियर इज योर सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क. मान लो कि आप ऑडिट करते हो और ऑडिट करने के बाद जो रिस्क आपको सैंपल में मिल रहा है वो एक्चुअली पूरी पॉपुलेशन में है ही नहीं वो रिस्क, उसको बोलोगे आप सैम्पलिंग रिस्क. ऐसा रिस्क जो पूरी पॉपुलेशन में नहीं है, लेकिन आपने जिस पॉपुलेशन को चेक किया है वहां पे अगर आपको जो रिस्क मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग रिस्क. रिस्क जो सैंपल पे बेस्ड होता है. कैसा रिस्क है ये? सैंपल बेस्ड. ऐसा कोई रिस्क जो कैसा है, सैंपल बेस्ड रिस्क है.
बट ये रिस्क पूरी पॉपुलेशन में नहीं है, सिर्फ आपने जो सैंपल चेक किया उसमें वो मिस्टेक निकली है, और आपको क्या लग रहा है पूरी पॉपुलेशन में इस टाइप की मिस्टेक है, तो दैट इज सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? ऐसा ऑडिटर का ऐसा एरोनियस कंक्लूजन देता है या इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर अगर वो लगा दे, मतलब पूरे सैंपल को ना चेक करते हुए या पूरे सैंपल में मिल ही नहीं सकता वो पर्टिकुलर रिस्क, तुमको अगर नहीं बता पा रहा है या नहीं रिप्रेजेंट, मतलब ऑडिटर ऐसा एरनियस कंक्लूजन देता है जो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर के कारण जो पूरे सैंपल में मिल ही नहीं सकता, ऐसा कोई रिस्क, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपल में तो नहीं है लेकिन पूरा सैंपल भी चेक करोगे तो वो वाला रिस्क नहीं मिलेगा, वो नॉन सैंपलिंग रिस्क होता है। नाउ यहाँ पे डिफाइन क्या है आपका ऑडिट रिस्क? क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड योर डिटेक्शन रिस्क। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के 2 पार्ट्स, इसको एक्सप्लेन किया, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कौन कौन से लेवल पे देखते हो आप उसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हो, असर्शन लेवल पे देखते हो। असर्शन लेवल ए, बी, सी और डी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की क्या चेक करोगे आप? इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का अपन ने क्या देखा था? व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? क्या क्या चीजों को रिस्क ICAIORR, क्या क्या चीजों को लोगे आप यहाँ पे? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, ये क्या हुआ? components of risk assessment procedure. Next you have to see is materiality. We have not covered, I'll take materiality later on. Understanding entity and its environment, मैंने आपको बोला था कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या देखना है? IREFANO, कौन सी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर कौन से रेगुलेशंस लग रहे हैं, उस एंटिटी में और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स लग रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी हो रही है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या लग रहा है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, उसका ओनरशिप, उसकी ओनरशिप क्या क्या, उसकी ओनरशिप किसके पास है, वो कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, फिर क्या उसमें उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रखी है, उसकी फाइनेंसिंग कैसी हो रखी है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है चलाने का। तो नेचर ऑफ एंटिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सारे आप उसको कैसे कर रहे थे? एंटिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। फिर एंटिटी को अंडरस्टैंड क्यों करते हैं, तो उसके मेन एरियाज को देखोगे तो आप एंटिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। हियर जस्ट राइट मेन, मटीरियलिटी 320 एंड एरियाज। ठीक, नेक्स्ट इंटरनल कंट्रोल हमने देखा। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग। उसमें हमने देखा था कि अगर हमको इंटरनल ऑडिटर नहीं बनाता है तो हम क्या करते हैं? मुंह फुला लेते हैं। क्यों मुंह फुला लेते हैं? A is your asset, L is your law regulation, F is your financial reporting, O is your operating effectiveness. नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या होती है इंटरनल कंट्रोल की? CHUMA, दैट इज कोलिजन, ह्यूमन एरर हो जाना, मैनेजमेंट का एरर हो जाना, अंडरस्टैंडिंग, एंड द लास्ट थिंग वाज ये हो गया अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट, लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, एनालिटिकल प्रोसीजर। सो ये आपको देखना पड़ेगा किसमें? दिस इज लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो व्हेन यू सी द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यहीं पे हमने और क्या चीज देखी थी? अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय कंट्रोल ओनर। लास्ट वाला ये है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय कंट्रोल ओनर। लड़की अपना राइट यूज कर रही है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाज आल्सो वन ऑफ देम। नेक्स्ट, इसके बाद आप यहाँ से चलोगे तो components of internal control, so we'll see this later on. At the same time, entity का risk assessment process अपन ने देखा है। सबसे पहले entity के risk assessment procedure में
इराक को सबसे ज्यादा रिस्क होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको एस्टिमेट करोगे, फिर उसको एसेस करोगे, फिर डिसाइड करोगे उसको एड्रेस कैसे करना है उस रिस्क को, राइट? नाउ व्हाट यू सी इज, नाउ ऐसे कौन कौन अपन ने इसको भी पढ़ा है, व्हाट आर दीज पॉइंट्स बेस्ड ऑफ, कहाँ पे आया था ये एग्जैक्टली exactly? क्यों आपको एंटिटी को, व्हाट इज द नीड टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी, व्हाई डू यू हैव टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी इन एसए 315? तो आप उसका क्या देखोगे, मेन एरियाज को देखोगे, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज देखनी है, मटीरियलिटी देखनी है, उसका रिलेटेड रिस्क देखना है, मेन एरियाज देखोगे, मेन areas, right? Next, when I go to the next page, okay, आप उसको कैसे करते हो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट कंट्रोल, कैसे अंडरस्टैंड करते हो, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और आईटी सिस्टम के थ्रू करते हो। फिर कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लिया जाना चाहिए, फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल प्रेशर है जहाँ पे, वो वाले ट्रांजैक्शन जहाँ पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी या कोई अदर डेवलपमेंट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, या डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कौन है, ऑडिटर खुद इसको डिसाइड करेगा। Then the things that are left in this particular chapter will be dealt in the next lectures. So what I'll do is I'll prepare the next lecture, and that will be the final sum up of your chapter number 3 of your new course. And this is a similar thing that was also there in the old course. I hope you are able to recap everything that we have read. Just go through your study material once. The major fact is हमको ऑडिट में मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑडिट, ऑडिट एविडेंस, नेचर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की अगर डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन, फाइनेंशियल असर्शन क्या होता है, असर्शन लेवल क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज आस्क्ड इज नॉट वेरी क्लियर, and when we don't read it very nicely, it is not clear to us. इसको आप logically, if you read it, you'll be able to understand everything. So I've tried my level best in order to make you learn and understand internal control very, very nicely. Thank you so much. Wait for my next upload of lectures on the same topic. Thank you so much. And this is CLD Jain signing off today. Now I am going to teach you. Hello everyone. Now I'm going to teach you something that is very, very important for examinations. What are the components of your internal control? Components. Like हमारी body की अलग अलग components हैं, हाथ है, नाक है, कान है, गला है. These are your components. Internal control के क्या क्या components होते हैं? Internal control के components को define किया है MICRA. MICRA is the short form. M से क्या करोगे? उसकी monitoring करोगे. किसकी monitoring? Internal control की monitoring करोगे. सेकेंड पॉइंट क्या है, आई क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, ये हो गया मॉनिटर, मॉनिटर क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन दैट यू डू. व्हाट इज द थर्ड थिंग हियर, सी, MIC, सी से क्या है, कंट्रोल एनवायरमेंट. व्हेनेवर आई सी एनवायरमेंट आई ड्रॉ अ ट्री, मुझे उससे एनवायरमेंट क्लियर हो जाता है. दैट इज अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट जहां पे आपके डेस्कटॉप वगैरह लगे हैं और वहां पे बिजनेस हो रहा है. व्हाट इज आर हियर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. मैम इराकी इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, यस, IRAC. You identify your risk and then you assess your risk. As soon as you assess your risk, आप उसको relate करके देखो कि वो अगर कौन कौन से assertion level को वो misstatement hit करने वाली है. You relate it and then आप chances देखोगे, likelihood देखोगे, consider the likelihood की possible material misstatements क्या हो सकते हैं उसमें. That is what is your risk assessment procedure. Yes. What is A here? A here is your activity. Which activity? Control activity. Which kind of activity is here? Control activity.
ओके, विच काइंड ऑफ एक्टिविटी? कंट्रोल एक्टिविटी इज देयर, राइट? उसके बाद हमको क्या देखना है यहाँ पे हमको क्या करना है? सबसे फर्स्ट, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट हियर इज व्हाट? फर्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग. आप किसको मॉनिटर कर रहे हो? इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर कर रहे हो. विल इट आस्क यू इंडिविजुअली? यस, इट कैन आस्क यू इंडिविजुअली, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मिक्रा का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है MICRA में कंट्रोल एनवायरनमेंट का जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मॉनिटर कर रहे हो. व्हाट डू यू मॉनिटर हियर एग्जैक्टली? यू आर मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस. आप कितने इफेक्टिवनेस से आपके ऑपरेटिंग जो भी डे टू डे ऑपरेशंस है वो कितने इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. आई टोल्ड यू कि आप डॉक्टर को बुलाओगे तो मॉनिटर कर रहे हो आप उसका इफेक्टिवनेस. प्रिवेंट, कंट्रोल, प्रिवेंट, करेक्ट और डिटेक्ट कर रहे हो क्या उसमें कोई मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं आ रहा है. दिस इज एन ongoing process. What did I say? Doctor, design, operating effectiveness, and it's a continuous process. It's an ongoing process. Recurring process है. कौन करता है? या तो मैनेजमेंट करता है या सुपरविजन या जो सुपरवाइजरी लोग रहते हैं वो करते हैं. क्या करते हैं? सब चीजों को मॉनिटर करते हैं. व्हाट इज मॉनिटरिंग हियर? मॉनिटर किसको कर रहे हो? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कर रहे हो. जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मॉनिटर करोगे तो उसकी इफेक्टिवनेस को देखोगे. वंस यू सी इट्स इफेक्टिवनेस, प्रिवेंट, कंट्रोल, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड उसमें करेक्टिव एक्शन लोगे. नेक्स्ट थिंग, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. कंटिन्यूसली चलता रहता है. कौन करेगा? मैनेजमेंट या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो वहां का सुपरवाइजर हो. एक्सटर्नल पार्टी से क्या आप वहां पे कंफर्मेशन ले सकते हो? यस, यू कैन टेक एन एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन हियर. दैट इज, यू कैन सी द कस्टमर कंप्लेन एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटी. जब आप इसको आप देखोगे तो आप उसको मॉनिटर कर रहे हो. किसको मॉनिटर कर रहे हो? इंटरनल कंट्रोल को. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? यू आर एक्चुअली मैनेजमेंट और ओनरशिप. द एक्चुअल फैक्ट इज जब मैनेजमेंट और ओनरशिप का बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहेगा एक दूसरे से, व्हेन दे आर क्लोजली इन्वॉल्व, मैनेजमेंट और जो बड़े लोग होते हैं, जो ओनर होते हैं, जब ये लोग काफी क्लोजली इन्वॉल्व होते हैं, then what can be done easily? Monitoring. You can see things very very nicely. What exactly is I here? I is information system. जब भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं इसका मतलब वहां पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, बचपन में ही देखे थे कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग हो रही थी वहां पे. नाउ किस किस चीजों की इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होती है वहां पे? सबसे छोटे लेवल पे ट्रांजैक्शन की, फिर जर्नल एंट्री की. जर्नल एंट्री को कहाँ लेके जाओगे? लेजर में. लेजर की चीजों को कहाँ शो करोगे? कहाँ रिफ्लेक्ट होती है वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. दिस इज हाउ यू एक्चुअली लर्न दिस. किस तरीके से लर्न करोगे? सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री का इफेक्ट कहाँ जा रहा है? लेजर में. लेजर का इफेक्ट कहाँ जा रहा है? तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तुमको देखना है ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो यूजर के लिए सिग्निफिकेंट है. जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है उसको कैसे तुम प्रोसेस कर रहे हो इसको तुम देखोगे. एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली सीइंग इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स में भी क्या? आई इज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसमें हर ट्रांजैक्शन जो जा रहा है उसमें जो आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है उसको आपने चेक किया. नॉन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का क्या? नॉन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को कैसे कंप्यूटर सिस्टम ने कैप्चर किया है? हाउ डू यू कैप्चर थिंग्स? कैमरा में कैप्चर करते हो आप चीजों को. बहुत बार स्नैपशॉट लेता है कंटिन्यूसली कंप्यूटर सिस्टम कि कितना वर्क हुआ है. व्हेन आई डू फ्रीलांसिंग तो बहुत बार इन अपवर्क दे एक्चुअली कैलकुलेट बाय नंबर ऑफ आवर्स. माय कैमरा इज ऑन एंड आई वर्क देयर. मैं कितने घंटे काम कर रही हूँ ये वहां पे पता चलता है. तो दैट इज माय इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैप्चर होता है. ऐसे इवेंट्स और ऐसी कंडीशंस अदर देन जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, मतलब यूजर के लिए जो सिग्निफिकेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको तो आपको उस ट्रांजैक्शन को देखना ही है. पर जो अदर नॉन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है या अदर ट्रांजैक्शन है अदर देन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है उसको इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? कैप्चर करना पड़ेगा. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट हियर? आप जर्नल एंट्रीज के अक्रॉस क्या लगाओगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाओगे. जर्नल एंट्रीज कौन सी वाली? अनयूजुअल ट्रांजैक्शन वाली, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन वाली, जो बार बार नहीं होती, हमेशा नहीं होती. अनयूजुअल ट्रांजैक्शन वाली जो जर्नल एंट्रीज होती है, या जो नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज है जो हमेशा नहीं होती, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होती है. इसके अलावा आप जर्नल एंट्रीज जब कोई एडजस्टमेंट करते हो तो कैसी टाइप की जर्नल एंट्री फॉलो करते हो? सो यू फॉलो जर्नल एंट्रीज एंड इन द 4 एरियाज: अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज वाले हैं, या आप कोई एडजस्टमेंट कर रहे हो उसको आप चेक करोगे किसमें? इंफॉर्मेशन सिस्टम में. देन व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? लेजर. लेजर में आप बराबर ट्रांसफर तो कर रहे हो. जब लेजर में आप बराबर ट्रांसफर कर रहे हो
तो या तो आपने आईटी सिस्टम लगा के रखा होगा या मैनुअल सिस्टम लगा के रखा होगा. इन दैट केस, हाउ इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डन? इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डन करेक्टली? Yes or no? And then when you see the accounting records, are the accounting records correctly stated? क्या वो correctly state हुए हैं? Yes or no? ये आपको चेक करना है. What is an information system? Information system को short करके learn करने का तरीका क्या है? पहले ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से बड़ा क्या? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से बड़ा क्या? लेजर, लेजर में करेक्ट पोस्टिंग. उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को आपको ट्रेस करना है. सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो गए जो यूजर के लिए, जो नॉन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है या अदर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, उसको इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा? कैप्चर करेगा. उसके बाद किसकी बात आ रही है? जर्नल एंट्री की. जर्नल एंट्री के अक्रॉस क्या लगा रहेगा? इंटरनल कंट्रोल लगा रहेगा. किस किस एरिया में? 4 एरिया में लगा रहेगा. नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री, या फिर कोई ऐसी जो नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है, या जहां पे आप क्या कर रहे हो? एडजस्टमेंट कर रहे हो, वो वाली जर्नल एंट्रीज. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? लेजर में आपने बराबर ट्रांसफर किया या नहीं, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बराबर हो रही या नहीं, चाहे वो आईटी सिस्टम में हो या मैनुअल सिस्टम में. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग हियर? Accounting record. Are the accounting records correctly stated? It has to be seen. What did we cover here? What is the next thing that we are going to cover? Control environment. What is this? This is super duper important. This is very very important. अगर कंट्रोल एनवायरमेंट में आप काम नहीं कर रहे हो, तो अगर आईपीसी की धारा आपके ऊपर लगेगी, अगर आईसीसी में सजा हो गई, तो श्राप जैसी सजा मिलती है आपको. श्राप जैसी सजा है वो आईपीसी. जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, व्हाट आर वी एक्चुअली रीडिंग नाउ? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में भी सी मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट. वहां के एनवायरनमेंट में क्या देख रहे हो आप? आईपीसी है कि नहीं? मतलब जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का आदमी है, वो कैसा होना चाहिए? इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए. उसकी कुछ एथिकल वैल्यूज होना चाहिए. पार्टिसिपेशन, टीसीडब्ल्यूजी कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? मैनेजमेंट ही को ही टीसीडब्ल्यूजी बोलते हैं. हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग? टीसीडब्ल्यूजी इज दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस. गवर्नेंस वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं? आर दे एक्चुअली डू दे हैव कॉम्पिटेंस टू कमिटमेंट? आप रन करते तो यू हैव अ कमिटमेंट ना, कि मुझे फर्स्ट आना है. दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट, क्या उनके अंदर एक कमिटमेंट है? First is what? Your I. What is I? I is your integrity. What is I? I is your integrity. Integrity और ethical values. अपना actually book का नाम क्या है? Audit की जो हमारी book है particularly, इस book का नाम क्या है? Audit and ethics. Ethics में आपकी क्या आ गई? Ethical values. आपको क्या देखना है? Integrity और ethical values. What is the second point that is to be seen there? The second point that is to be seen there is participation. कितना TCWG पार्टिसिपेट कर रहा है एनवायरमेंट में. व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट इज टू बी सीन देयर? आईपीसी. सी में क्या है? कितना कॉम्पिटेंस है? कॉम्पिटेंस टू कमिटमेंट टू योर कॉम्पिटेंस. कितना आप कमिटेड हो कि आपको फर्स्ट आना है. व्हाट इज श्राप? श्राप मतलब तो नॉर्मल में ऐसा होता है ना, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा. दैट इज श्राप. तो कंट्रोल एनवायरमेंट में अगर तुमने काम नहीं किया, तो आईपीसी से अगर आईपीसी की धारा में सजा हो गई, तो तुमको श्राप जैसी सजा मिलेगी. श्राप जैसी सजा है वो. व्हाट इज एस? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज एच? एच इज योर ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी. व्हाई डू वी सी ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी? अ लॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग वर्क हियर. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन एंड असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी. हम काम दे देते हैं ना कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है. सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, then there are various head of departments. What is that? Delegation of authority. What is that? Assignment of authority. S से क्या है वहां पे? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. H से क्या है? ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी और प्रैक्टिसेस. What is A here? Assignment of authority and responsibility. P क्या है? F. P क्या है? तुम्हारी फिलोसफी. तुम किस फिलोसफिकल गाइडलाइंस है? तुम्हारी क्या फिलोसफी है जब तुम काम करते हो? मैनेजमेंट की फिलोसफी, मैनेजमेंट का एक स्टाइल होता है काम करने का. ये बाबूराव का स्टाइल है, वैसे ही मैनेजमेंट का एक स्टाइल है. कंट्रोल एनवायरनमेंट में अपने को शॉर्ट फॉर्म क्या दिया हुआ है? अगर आईपीसी की धारा में सजा हो गई, तो श्राप जैसी सजा है. कैसी सजा है? श्राप जैसी सजा है. व्हाट इज आई? इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. व्हाट इज पी? P here exactly means participation by management. C is your commitment to competence. कितना chances है आप rank 1 आओगे? उसके बाद what is S?
S में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, H में ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी, ए में कितना आप असाइन करते हो, पॉलिसी और प्रैक्टिस, ए में असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पी में फिलोसफी, किसकी, मैनेजमेंट की फिलोसफी, और बाबूराव का स्टाइल. दिस इज योर कंट्रोल एनवायरमेंट. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट? MICR, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. मैम सेम है क्या? यस. आइडेंटिफाई करो, एसेस करो, इवेल्युएट करो, फिर उसको रिलेट करो रिस्क को रिलेट करो कि असर्शन लेवल में क्या गलत हो सकता है उससे. वंस यू रिलेटेड, देन कंसिडर की लाइकलीहुड की पॉसिबल material misstatements तुमको क्या क्या हो सकते हैं. What is the next thing that you have to see? Control activities, MICRA. This A is control activities. Control activities में क्या लगाते हो? Whenever we see control activities, we see few of the things. We see control activities. The first thing that we see is segregations of duties and responsibility. Every person has a different responsibility. And then we have your physical control. That is, you put a lock at the gate, you put a lock at your business houses. What is that? That is your physical control. After physical control, you have an information system, right? The information system, how it is processing things. Input लिया, आउटपुट निकाला, लेकिन बीच में क्या किया उसने? प्रोसेसिंग किया. हाउ इट इज एक्चुअली प्रोसेसिंग थिंग्स. एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग हियर? परफॉर्मेंस रिव्यू. how the performance is reviewed. Is it said performance view? Nahi. View is something that you do at the first point of time. This is performance review. So whenever you do some kind of performance review, it is done here at the A, control activity level. 4 kind of control activity hoti hai, 4 types of control activities. What is the first one? Segregation of duties. Segregation is basically what? Division of duties. Second is what? Your physical control. What is the third thing here? तुमने वहां पे ताला लगा दिया, वहां पे अंदर में क्या पड़े थे? कंप्यूटर सिस्टम. वो क्या कर रहे थे? प्रोसेसिंग कर रहे थे. और तुमने वापस क्या किया? पूरे परफॉर्मेंस को तुमने क्या किया है? रिव्यू किया है. व्हाट इज दैट? कंट्रोल एक्टिविटी. सो दीज आर बेसिकली द components of internal control. If I say components of internal control, this is a very important topic. First is monitoring. Second one is information system and communication. Third is control environment. Control environment में क्या आएगा? IPC and SHAP. Risk assessment, IRAC. Control activity. Control activity 4 level पे होती है, right? उसके बाद monitoring of controls. How do you monitor the controls? Again see it. Monitor the control, उसकी effectiveness, उसकी efficiency, उसको prevent, control और detect कैसे कर सकते हैं, वो एक ongoing process होता है, recurring process होता है, जो management या supervisor parties देखती है. इसके अलावा it is an एक्सटर्नल पार्टी. अगर कोई कस्टमर कंप्लेन कर रही है, सुपरवाइजरी एक्टिविटी दे रही है, तो हमको उसको चेक करना है. मैनेजमेंट जितना क्लोज है ओनर से, उतना अच्छा हमारा मॉनिटरिंग होगा. फर्स्ट थिंग इज मॉनिटरिंग. सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. व्हेन वी सी द इंफॉर्मेशन सिस्टम, देयर आर वेरियस थिंग्स टू बी सीन. ट्रांजैक्शन पे, जर्नल एंट्री पे, लेजर पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. कंट्रोल एनवायरनमेंट में व्हाट डू वी हैव टू सी? IPC, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, देन पार्टिसिपेशन, कमिटमेंट, structure of the organization, HR policy, assignment of authority and philosophy. Philosophy किसकी? Management की. बाबूराव का style is there. And then what is there? Risk assessment procedure. Is it IRAC? Yes, it is IRAC. It is identifying, assessing, relating, and last में considering. What is the next part? Your control activities. What are the control activities? Your segregation of duties, your physical control, your processing in the information system, and at the end it is performance review.